Again, a very, very big thanks to Ravindra sir, Ishan, and the whole team. So thank you everyone for joining. Let us start the topic without wasting a single moment. So just to give you clarity of this concept of 5 element and 10 element, I am here with you. First of all, let us understand that we have two streams of acupressure which we are understanding presently. One is Chinese acupressure and another one is Ayurvedic acupressure. बिल्कुल लेमैन की तरह बता रही हूँ, एकदम सबसे सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल लैंग्वेज में. और आज की 1 घंटे की क्लास उसमें जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 5 एलिमेंट, उनकी एनर्जीज, 10 एलिमेंट और वो कौन कौन से हैं ये याद हो जाने चाहिए. सो इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन. कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो जरूर चैट बॉक्स में डालिए एंड इन बिटवीन आई विल आल्सो कीप ऑन आस्किंग यू क्वेश्चंस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, सो वन इज Chinese acupressure, another one is Ayurvedic acupressure. So कितने हैं, कितनी streams हैं acupressure में जो आप कर रहे हो? See, there is Sujok, there is reflexology, there is acupuncture, there is color therapy, there is seed therapy, magnet therapy. ये branches हैं. लेकिन फिलहाल as a semester student, what should you know? कितने streams हैं जी? आप हमेशा अभी जो है be prepared. Chat box को खोलकर बैठिए. आप मुझे answer देंगे संग में. Even if you know everything, still give me answer. कितने स्ट्रीम्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए? 2 स्ट्रीम है. वन इज चाइनीज एक्यूप्रेशर एंड अनदर वन इज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर. ठीक है, चाइनीज एक्यूप्रेशर इज योर CA एंड आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इज योर AA. CA. ठीक है, जब हम चाइनीज एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, ओनली चाइनीज एक्यूप्रेशर, Chinese acupressure is a part of acupressure. वो भी acupressure है. Ayurvedic acupressure भी acupressure है. When we talk about Chinese acupressure, it is thousands of year old therapy. Almost 300 BC, यानी क्राइस्ट के जन्म से भी 300 साल पहले की बात हो रही है. So 300 years before Christ भी acupuncture होता था, जो modify होते होते अलग अलग forms में it has spread to different part of the world. So this Chinese acupressure which you are learning is based on 5 elements. जब आप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो चाहे हमारे धर्म हो, वेद हो, पुराण हो, किसी में भी बताया गया है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है. Our body is made up of 5 elements. In Sanskrit we call it क्षितिजल पावक गगन समीरा. 5 तत्व से बना शरीरा, राइट? सो ये 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं. इन चाइनीज एक्यूप्रेशर दिस हैज बीन रीनेम्ड, अलग अलग नामों से इसे जाना गया. सो 5 एलिमेंट चाइनीज एक्यूप्रेशर के कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ चाइनीज एक्यूप्रेशर अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर? एक बार ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए. कीप योर ब्लैक बोर्ड क्लीन. Don't think about Ayurvedic acupressure right now. Think only about Chinese acupressure. First, we'll discuss Chinese acupressure and then we'll move on to Ayurvedic acupressure. Okay. So according to Chinese acupressure, how many elements are there? On what different elements you are working? What is the principle of working? You will be working on 5 elements. So these 5 elements are your wood, fire. If you know the answer, write in the chat box. Earth. Even if your friends have written, still write down. Metal. Water. ये 5 एलिमेंट हैं. कौन कौन से हैं? वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर. ऑलमोस्ट 200 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हैं. Every one of you, just raise your fingers like this. Those who want to learn, raise your fingers like this. Okay? Give me just few minutes of yours.
फोकस 100% यहाँ रखिए, काम होते रहेंगे। आज की जो क्लास है इसमें कुछ सीख कर जाइए। कीप योर फिंगर्स लाइक दिस, स्टार्ट विथ थंब, okay, and repeat to yourself as I say, this is the first element. This is the first element. Okay, if you have a pen with you, पेन नहीं है तो पेन ले आइए जल्दी से भागकर, इसके ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर wood. Every one of you write down wood. Even if you know the answer, still write down wood. ठीक है, इसमें लिखेंगे fire, earth, metal and water. तो 5 उंगली हैं, you have 5 fingers. On the 5 fingers you have written 5 names. First element कौन सा है? Wood. Second element fire. Third element earth. Fourth element wood, fire, earth, then metal, and last one is water. So this finger concept, when I'm talking about this finger concept will also help you in future in treating through different methods. जब आप creative cycle और एंटी क्रिएटिव साइकिल, सब्जुगेशन, एंटी सब्जुगेशन, इसका भी जब आप यूज करोगे तो ये जो साइकिल फिंगर का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. So ऐसा नहीं है कि थंब को वुड बोला गया, दिस इज जस्ट टू लर्न, ये याद रखने के लिए. दिस इज अ कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग यू टू लर्न एंड मेमोराइज. Otherwise we'll keep on forgetting what are the 5 elements, how to treat through these elements. So there are 5 elements: wood, fire, earth, metal, water. सबको ये clear होगा? Clear to everyone? Now we move on to energies. What are its different energies? See this chart. So we have already done this part. Elements सबको याद हो गए हैं? Wood, fire, earth, metal and water. Wood is number 1, fire is number 2, number 3 is earth, number 4 is metal and number 5 is water. Right? Now come to energy. What are its energies? इसकी energies क्या है? Wood की energy is wind. How will you remember this? कैसे याद रखेंगे? Wood is लकड़ी. लकड़ी means पेड़. Trees. Trees related to exchange of gases. That means it is related to gas. Different gases. Where are these gases present? In the environment. So it is related to wind. पेड़ पौधे क्या देते हैं? हवा देते हैं. कोई तो मेथड होगा ना जिससे आपको याद रखना है. समझना एक बात है और उसे याद रखना दूसरी बात है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं और मैसेज आते हैं कि मैम समझ में तो आ गया, याद नहीं होता है. तो याद रखने के लिए you have to associate each word with something. So पेड़ पौधे are related to हवा, wind. Okay, so wood energy is wind. फायर की एनर्जी क्या होगी? फायर की एनर्जी, फायर में क्या है? गर्मी है. सो फायर की एनर्जी क्या होगी? हीट. सो इट्स एनर्जी इज हीट. यहाँ पर 2 जगह लिखा है हीट, हीट एंड हॉटनेस. एक है हीट और एक है हॉटनेस. हीट इज गर्मी एंड हॉटनेस इज टू मच ऑफ हीट, प्रचंड गर्मी. डायरेक्ट हीट, that is your hotness. Earth is related to humidity. Earth has the power to absorb water. So wherever there is a power to absorb water, that thing or that condition becomes humid, isn't it? So if the earth is absorbing water, it has moisture content in it. So it has humidity in it. So the energy is humidity. Metal energy is dryness. Why dryness? Because metal is condensed. The molecules are highly compact. So there is no moisture content in it. There is no water content in it. It is totally dry object. It is hard and dry. So the energy is dryness. And last one is water. Water energy is coldness, because water, normally when we talk about water, it's सामान्य गुण बोल लीजिए या विशेष गुण बोल लीजिए. जल का जो गुण है वो क्या है? शीतलता, ठंडक.
coldness. Okay, water is cold, so the energy is coldness. So when we talk about, see, there are two concepts now. इसे भी समझ लीजिए. बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इस कॉन्सेप्ट में गलती करते हुए. When we talk about elements, wood, fire, earth, metal, water. When we talk about energy, it is wind, heat and hotness, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस. याद रखिएगा, दो अलग बातें, एक है एलिमेंट और एक है एनर्जी. ठीक है, ये एकदम क्लियर है. So if I talk about the energy of wood, what will you say? What is the energy of wood? The energy of wood is, yes, wind. What is the energy of fire? Fire की energy क्या है? वो आप उसे महसूस कैसे करेंगे? Energy means the way with which you will understand, you will feel it. The energy of fire is heat or hotness. Energy of earth is humidity. Energy of metal is dryness and energy of water is coolness. Yes, absolutely correct. Those who are answering, they are learning. Fine. So दो चीजें आपने सीखी, एक है 5 एलिमेंट और एक दूसरा आपने सीखा 6 एनर्जी. So if I ask you how many energies are there according to Chinese acupressure, Chinese acupressure के हिसाब से कितनी energies हैं? How many energies are there? Yes, 6. Elements are 5, energies are 6. ये क्लियर है? सबको क्लियर हुआ है? इंटरैक्ट करेंगे, बिकॉज जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है, आज का ये गोल्डन मोमेंट है आज की बातों को न कि सिर्फ समझना बट याद भी करने के लिए. सो जस्ट रेज योर थंब सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गई इतनी बातें. समझ में आया है? ग्रेट, बहुत बढ़िया. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, जिसमें भी बहुत गड़बड़ करते हैं, और वो है ऑर्गन्स. कौन से एलिमेंट का कौन सा ऑर्गन है मैम, यही याद नहीं होता है. कैसे याद करेंगे? बड़ा इजी है इसको याद करना. वुड की एनर्जी क्या है? विंड. ठीक है, आपके शरीर में 2 ही ऑर्गन हैं जो किसी भी अचानक होने वाली कंडीशन को कंट्रोल करते हैं. अचानक कुछ भी होता है, लिवर एंड गॉल. अचानक क्रैम्प्स, एक याद रखिए. ठीक है, एक एग्जांपल दिमाग में फिट कर लीजिए. क्या याद रखेंगे? क्रैम्प. क्रैम्प क्या धीरे धीरे आता है या अचानक आता है? अचानक आता है. अचानक क्या चलती है? हवा. सो विंड इज रिलेटेड टू क्रैम्प, करेक्ट. और क्रैम्प इज रिलेटेड टू लिवर गॉल ब्लैडर. याद रहेगा? क्रैम्प्स आते हैं, दिमाग में कौन सा ऑर्गन आएगा? लिवर गॉल ब्लैडर. और क्रैम्प्स आर रिलेटेड टू wind. So now you will remember that wind is related to 2 organs. गुस्सा अचानक से आता है ना. So गुस्सा क्या है? This is wind. जो भी चीज अचानक चलती है, this is wind. And wind is liver and gallbladder. So 2 organs related to wood or wind energy, wood element or wind energy. These are liver and gallbladder. Clear? याद रहेगा? Organs related to, this is liver and gallbladder. Next element is your fire. फायर से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन है? फायर की एनर्जीज कितनी है? देखिए सबकी एक एक एनर्जी है, सिर्फ फायर ही है जिसकी 2 एनर्जीज. 2 एनर्जीज कौन सी है? हीट एंड हॉटनेस. ये तो अभी देख लिया आपने. अब हीट के भी 2 ऑर्गन है, हॉटनेस के भी 2 ऑर्गन. देखिए सबके 2 ऑर्गन है, क्योंकि हर चीज बैलेंस होकर चलती है. जैसे हस्बैंड और वाइफ, नदी के 2 किनारे, सिक्के के 2 पहलू, दुख और सुख, सुबह शाम दिन रात, वैसे ही एवरी ऑर्गन, एवरी एलिमेंट हैज बीन गिवन 2 ऑर्गन्स. सो बोथ द एनर्जीज हीट एंड हॉटनेस हैज 2 ऑर्गन्स. 2 ऑर्गन है जो आपस में बैलेंस करके चलेंगे. हीट के 2 ऑर्गन कौन कौन से? हीट के 2 ऑर्गन है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाई हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिलेटेड टू हीट? गर्मी से क्या संबंध है? खाना खाने के बाद गर्मी लगती है? गर्माहट आती है शरीर में, या शरीर ठंड लगने लग जाती है? खाना जब खाते हैं उसके बाद शरीर में एनर्जी आती है, गर्मी लगती है. सो इट इज रिलेटेड टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. सो इट इज रिलेटेड टू हीट एनर्जी. एंड वंस स्मॉल इंटेस्टाइन इज डाइजेस्टिंग द फूड, दैट फूड का एनर्जी गोज टू हार्ट.
because it is helping in formation of blood. स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं करेगा तो ब्लड बनेगा? आप ब्लड पर कितना भी काम करते रहो, लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन गड़बड़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन ठीक नहीं है, then there will be problem related to blood. And if the blood is not well, अगर blood से related problem है, then definitely it will affect the heart. So both are very much interconnected. Heart and small intestine, they go hand in hand. Okay? So heat के दो organ हो गए, heart and small intestine. Now the hotness. Hotness means too much of heat. कभी करंट का झटका लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक? एक है आपने गैस के ऊपर हाथ रखा और एक है इलेक्ट्रिक का करंट लगा. Which one do you think has more sharp effect on the body? Current? Yes. Okay. And this current is nothing but hotness. And this current in the body is seen by two organs, pericardium and triple warmer. So your triple warmer is spine. Spine से क्या जाती है? Nerve की impulse. So current कौन flow करेगा? Triple warmer. करंट कहां से जाएगा? बॉडी में करंट कहां से जाएगा? इंपल्सेस कहां से जाएंगे? स्पाइन से, यानी ट्रिपल वार्मर से. सी दिस इज अ वे टू लर्न इट. इट्स अ वे. इस तरीके से आपको याद होगा. बहुत ज्यादा अगर लॉजिक में जाओगे तब नहीं समझ पाओगे इस चीज को. तो कुछ याद करने की टिप्स जो हैं वो याद रखिए. सो ट्रिपल वार्मर और स्पाइन थ्रू विच करंट पासेस इज अ पार्ट ऑफ, इज एन ऑर्गन ऑफ योर हॉटनेस एनर्जी. And the pair is pericardium. PT, pericardium, triple warmer. Okay. Now the next organ related to earth is stomach and spleen. Earth कैसी है? Wherever there is earth, there is deposition. ऐसे याद रखिए. Earth क्या करती है? Deposit करती है. धरती माँ है ना, सब कुछ ले लेगी अपने पास. तो आपका दुख हो, सुख हो, भार हो, वजन हो, कुछ भी हो, धरती ले लेगी. Earth has a power to accumulate. Earth has a power to store. जहां पर भी अर्थ होगा वहां accumulation होगा. So earth जैसे accumulate करती है, आपकी बॉडी में कौन सा organ है जो आपके सब कुछ accumulate करता है? It's a bag in which you are accumulating and which helps in accumulation of fat in the body. Yes, I'm getting few answers. Yes, stomach. Isn't it? So stomach is related to earth element. Understand this. Earth से related organ कौन सा हो गया? Stomach. And stomach pairs with spleen. Stomach and spleen goes hand in hand. एक दूसरे के साथ ही हैं. दोनों मिलकर ही एनर्जी का को कन्वर्ट करते हैं. जो फूड आपने खाया उस फूड को फूड ची में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? स्टमक एंड स्प्लीन. करेक्ट? याद रहेगा? फाइन. नेक्स्ट इज ड्राइनेस. Dryness is related to two organs, lung and large intestine. Why lung and large intestine are mentioned here? Lung is an organ which not only helps in breathing, in respiration, but it also helps in throwing out excess of water vapor from the body. आपके शरीर से जो भी water vapor है उसे निकालने का काम कौन करता है? Lungs. ठीक है? So lung is an organ which helps in bringing dryness to the body. ये शरीर के वाटर को बैलेंस करता है. बाय एक्सहेलिंग, अलोंग विद एक्सहेलेशन इट गिव्स आउट वाटर वेपर. एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो डेफिनेटली इज रिलेटेड टू वाटर, बिकॉज किडनी यू भी जैसे वाटर से रिलेटेड है ना, ठीक उसी तरीके से शरीर में ड्राइनेस के लिए कौन जिम्मेदार है? लार्ज इंटेस्टाइन. इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द एक्सक्रीटा. आपका जो स्टूल है वो स्टूल का फॉर्म किसने दिया है? लार्ज इंटेस्टाइन ने, बाय एब्जॉर्बिंग extra water from it. So it is related to dryness. And lung and large intestine again pair with each other. And last one is coldness. The two related organs are kidney and urinary bladder. I don't think इसको समझाने की जरूरत है क्योंकि ये तो बहुत clear है कि both kidney and urinary bladder are related to water balance in the body. I'm not talking about dryness, I'm talking about water. Okay. So kidney and UV. Kidney blood को filter करेगी and urinary bladder excess जो भी excreta है it will throw it out of the body along with extra water. So what are the different organs related to different elements? बताइए. Different organs कौन कौन से हैं?
वुड के ऑर्गन कौन कौन से हैं? विदाउट सीइंग द चार्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, अपने आप या तो चैट बॉक्स में डालिए। 2 ऑर्गन विंड से रिलेटेड कौन से हैं? लिवर एंड गॉल ब्लैडर। वेरी गुड, याद रखिएगा, लिवर और गॉल ब्लैडर आपके शरीर में विंड को कंट्रोल करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी, देन विंड एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एलिमेंट, देन वुड एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। उसी तरीके से हीट के लिए कौन रिलेटेड है? द ऑर्गन रिलेटेड टू हीट आर हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हॉटनेस, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर। अर्थ, स्टमक एंड स्प्लीन। मेटल, lung and large intestine. Very good. And coldness, kidney and urinary tract. सबको समझ में आया? It's clear to every one of you. Fine. Now the color. कलर कैसे याद रखेंगे? कौन से एलिमेंट का कौन सा कलर है? याद ही नहीं होता मैम, मिक्स हो जाता है। जब जल का बोलते हैं तो कभी ग्रीन सोचते हैं, कभी ब्लू सोचते हैं। आयुर्वेद से सोचें कि चाइनीज एक्यूप्रेशर से सोचें। देखिए कैसे याद रखना है। जब चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से सोचेंगे तब ऐसे याद रखिए, एक कच्चा आम, जर्नी ऑफ अ रॉ मैंगो, किस तरीके से डेवलप करता है, कैसे डेवलप करता है? देयर इज अ रॉ मैंगो, ठीक है। इट्स कलर इज, कौन सा रंग है? कच्चे आम का कलर क्या है? ग्रीन, ग्रीन कलर का है ना कच्चा आम। तो ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है, दैट इज वुड। यही कच्चा आम जब पकना शुरू होता है तो ऊपर कौन सा कलर दिखाई देता है? इसके टॉप मोस्ट पार्ट पर, ग्रीन आम के टॉप मोस्ट पार्ट पर कौन सा कलर आ जाता है? रेडिश होने लग जाता है। देखा कभी हरी पत्तियां, नई नई हरी पत्तियां जब निकलती है तो लाल रंग की रहती है, ब्राइट रेड कलर की होती है। तो जब नेक्स्ट स्टेज आती है, when a young leaf is growing into the next stage, or raw mango, green colored raw mango goes to the next stage of ripening, then the first change which is seen there is the reddish color on top. So that is heat. The next stage, wind, heat. Next third energy is humidity. आम अब पक गया। आम जब पकता है तो कौन से कलर का हो जाता है? मेरे पास ऑरेंज का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये ऑरेंज, ठीक है। रेड, ऑरेंज, रेडिश से ऑरेंजिश होते हुए येलो की तरफ। सो द फोर्थ एक्चुअली वुड, द विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का कलर क्या है? येलो। आम पक गया। सो वुड का एनर्जी क्या थी? विंड, कलर क्या है? ग्रीन। फायर, द कलर इज रेड। रेड से होते हुए किस में चला जाएगा? ह्यूमिडिटी में, कलर इज येलो। एंड फोर्थ वन इज ड्राइनेस। ड्राइनेस का कलर कैसा होगा? आम पक गया, पके हुए आम को रख दीजिए आप घर में, क्या होगा? 2 दिन 4 दिन, ठीक है, 7 8 9 डेज, क्या होगा उसी आम का? इट विल स्टार्ट टर्निंग ब्राउन, सड़ने लग जाएगा। पहले ब्राउन होगा तब ब्लैक होगा, है ना। सो इट विल टर्न इनटू ब्राउनिश। सो द फोर्थ एनर्जी इज ड्राइनेस। एनर्जी क्या होगा? ब्राउन। एंड द लास्ट वन, सड़ गया आम, बिल्कुल सड़ गया, छोड़ दीजिए उसे 1 महीना एक ही जगह पर, इट विल टर्न इनटू ब्लैक कलर। सो दीज आर द 5 कलर्स। कैसे याद रखेंगे? कच्चा आम पकना शुरू हुआ और पक गया, सड़ना शुरू हुआ, सड़ गया, याद हो जाएंगे 5 कलर, 5 एलिमेंट, 5 एनर्जी। तो दिस इज चाइनीज एक्यूप्रेशर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप याद भी रख सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। मगअप नहीं करना है, but automatically you will remember it. So this was basic concept of Chinese acupressure. Now move on to the next one, the second branch, and that is your Ayurvedic acupressure. मैम ये तो बिल्कुल ही याद नहीं होता है, बिकॉज इट हैज 10 एलिमेंट्स। 5 तो फिर भी याद कर लिए थे, 10 is too difficult. So what is Ayurvedic acupressure? First understand this. And what is the difference between Chinese acupressure and Ayurvedic acupressure? Chinese acupressure, the concept and the development is mainly Chinese. इसीलिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलते हैं इसे। And Ayurvedic acupressure, the basic concept is based on Ayurveda. आयुर्वेदा पर है, दोनों ही पुराने हैं। जैसे चाइनीज एक्यूप्रेशर बहुत पुराना है, thousands of years पुराना है,
उसी तरीके से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा विच इज अगेन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। आयुर्वेदा कहाँ से शुरुआत हुई थी? आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी ब्रह्मा से, द लॉर्ड गॉड ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपने बेटे को दिया था, उनका बेटा था दक्ष प्रजापति, जिनको माना गया है कि अंगूठे से जन्म लिया था दक्ष प्रजापति ने। तो ब्रह्मा ने अपने बेटे को ये साइंस दे दिया। कौन सा साइंस? आयुर्वेद का। दक्ष प्रजापति ने उसे मेडिसिन के डॉक्टर को दिया, अश्विनी कुमार, सूर्य के पुत्र थे अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो मेडिकल डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, देवताओं के डॉक्टर, भगवानों के डॉक्टर, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, इसे तो देवताओं के राजा को पता होना चाहिए। तो उन्होंने ये ज्ञान दे दिया इंद्र को। जब इंद्र के पास ये ज्ञान था और धरती पर महामारी फैली थी, तब यहाँ के ऋषियों ने 3 ऋषियों को ऊपर भेजा। उस समय इंटरेक्शन होता था नीचे ऊपर के बीच में। तो 3 ऋषि जो यहाँ से गए वो कौन कौन से थे? भारद्वाज, यस, और एनी आइडिया? कश्यप, और who was the third one? No, not अग्निवेश, धन्वंतरी, yes. So भारद्वाज, धन्वंतरी एंड कश्यप, VDK, ऐसे याद रखिए। VDK गए थे वहां पर इंद्र से ज्ञान लेने के लिए, और उन्होंने ये ज्ञान वहां से पाकर चरक, अग्निवेश, सुश्रुत और ना जाने कितने सारे ऋषियों को दिया, विच डेवलप्ड इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स। किसी ने सर्जरी में, किसी ने कौमार भृत्य यानी पेडिट्रिक, किसी ने जनरल फिजिशियन की तरह इस तरीके से काम किया, एंड दे डेवलप्ड द साइंस ऑफ आयुर्वेदा। एंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, व्हेन acupressure starts working, we call it ayurvedic acupressure. ठीक है? So ayurvedic acupressure, when we are talking about this therapy, this is based on 10 elements, 10 elements. 10 elements कौन कौन से हैं? देखिए 10 elements जो हैं उसको याद रखने का एक तरीका है। जब मैंने वाइवा में पूछा कि 10 elements कौन कौन से हैं, शुरुआत ऐसे हुई, मैम एक तो मन है, एक अग्नि है, एक तम है, एक जल है, आगे याद नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं है। इट्स अ स्टोरी, याद रखिए, स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो इफ यू रिमेंबर दिस स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यू विल रिमेंबर ऑल द 10 एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। कैसे याद रखेंगे? जब कुछ नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, जब कुछ नहीं था तब कुछ जन्मा। कुछ नहीं था मीन्स क्या? व्हाट इज दिस कुछ नहीं था? सुषमा जी, जब कुछ नहीं था, सुषमा तनवनी जी, यस, जब कुछ नहीं था तब कुछ जन्मा। सो व्हाट इज दिस कुछ नहीं? कुछ नहीं इज तम, अंधकार। ठीक है? सो इट वाज डार्क। इमेजिन करिएगा सिर्फ मेरे संग संग, जब कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, देन इट वाज पिच डार्क। सो व्हाट इज दिस? योर फर्स्ट एलिमेंट। What is your first element? Your first element is 0. That means tam. Tam means andhakar. Andhakar means darkness. ठीक है? 0, there was nothing, tam. और उसी तम में there was a big bang. There was विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, and then originated something. What is this something? There was a boundary which was created after the Big Bang. ठीक है? So इस origin में जो शून्य से जो उत्पत्ति हुई, it gave a boundary to the universe, कि यहाँ तक यूनिवर्स का फैलाव है, ब्रह्मांड का विस्तार है। So this boundary और margin और covering is called one Akash. So second element now you will remember is, जब कुछ नहीं था तो वहां पर सबसे पहले आकाश बना, स्पेस, राइट? जब स्पेस बना, जब कुछ भी आएगा, देन स्टार्टेड वहां पर जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्टेड गैदरिंग, एंड दीज मॉलिक्यूल्स वर ऑफ डिफरेंट गैसेस। Different gases, gaseous molecules were rotating all around, moving all around. So जब भी गैस की बात करते, जब कुछ बन गया, जब एक स्पेस बन गई, उसके अंदर कुछ गैसियस जो मूवमेंट शुरू हुई,
गैसेस होंगी तो गैसेस इज नथिंग बट नंबर 2 वायु. विंड, विंड नहीं बोलना चाहती हूँ एक्चुअली, इन वर्ड्स को मैं हिंदी में ही लिखना चाहती हूँ बिकॉज इट हैज इट्स ओन इम्पैक्ट, इट हैज इट्स ओन वैल्यू. सो 2 इज वायु. ठीक है. जब मॉलिक्यूल्स आ गए, जब मॉलिक्यूल गैसेस, गैसियस मॉलिक्यूल्स वर देयर, नाउ दिस मॉलिक्यूल्स स्टार्टेड रबिंग ईच अदर. देयर वाज अ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. रब करके देखिए, अपने हाथों को भी रब करके देखेंगे और जोर से रब करेंगे तो wherever there is friction there is number 3, that is अग्नि. तो जब भी मॉलिक्यूल्स में फ्रिक्शन हुआ तो अग्नि बनी, अग्नि का जन्म हुआ. so this was the third element. and since agni was there, the heat was there, it condensed a few gases. अगर आपने स्कूल में केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में स्पार्क किया जाए, स्पार्क मींस इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिक स्पार्क जब हम देते हैं दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो उस स्पार्क से क्या बनता है? वाटर. सो दिस वाज जल. सो जो अग्नि थी, उस अग्नि के कारण क्या, किस चीज का जन्म हुआ? जल का जन्म. सो दिस वाज द फोर्थ एलिमेंट. वंस द सब्सटेंसेस स्टार्टेड कंडेंसिंग, जब कंडेंसेशन शुरू हुआ, ठंड आनी शुरू हुई, बिकॉज पहले तो विस्फोट हुआ था, गर्मी थी, बहुत प्रचंड गर्मी थी. यही गैसेस का जो अग्नि का जो गोला था, ये गैसेस जो जल रही थी, ये जब ठंडी होनी शुरू हुई तो ठंडे होते होते कंडेंस्ड होने लगी. ठंडी होते होते क्या बने? अर्थ, यानी पृथ्वी. यही पढ़ा है ना बचपन में, पृथ्वी पहले जलता हुआ आग का गोला था, अभी भी तो जल रहा है, भीतर ही भीतर आग है. धरती के अंदर जाएंगे तो देयर इज नथिंग बट लावा, इट्स अ मोल्टन लावा इनसाइड, जो ऊपर ऊपर ठंडी है, अंदर अभी भी जल रही है. सो यस, देयर आर डिफरेंट लेयर्स. so earth is actually the condensed form of number 4, that is your jal. Jal का condensed form है पृथ्वी. once prithvi is formed, once earth is formed, these all are considered as physical elements because you can see these elements. आप इन्हें देख पाते हो, आप इन्हें छू पाते हो, आप इन्हें महसूस कर पाते हो through your sense organs. आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी. But once the earth was formed, once the earth, yes, I apologize, not 0, but from 1 to 5. So once the Prithvi was formed, it started rotating on its axis and revolving around the sun. So not only it rotated on its axis, but also around the sun, and since it was moving on its axis, it gave the concept of पृथ्वी जब अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमती है, so it gives the concept of what? क्या होता है when the earth is moving from on its own axis? Day and night. Yes, day and night. And when it is moving around the sun, year बनता है और seasons. Excellent. So जो ये मौसम है और जो ये दिन रात है, this is nothing but काल, टाइम, समय है ना. अगर दिन रात का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो समय पता चलता? अभी शाम होने लग गई तो समय का पता चल रहा है, सीजन्स चेंज होते हैं तो समय का पता चलता है. सो दिस इज काल. सो व्हेन अर्थ स्टार्टेड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन, these hard balls started moving around the sun, it is your kal. And this kal, the movement of earth on its axis or around the sun was in a particular direction. ऐसा है क्या कहीं भी घूम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा तो नहीं है. इट मूव्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन. सो देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 7, डायरेक्शन, जिसे आप कहते हैं दिशा, है ना. जब दिशा भी है, काल भी है, समय भी है, धरती ठंडी भी हो गई, तब जन्म किसका हुआ? Then was the birth of what? मन. What is मन?
क्योंकि हमें पता है 8 नंबर मन होना चाहिए, इसलिए आंसर थोड़ी ना मन होगा। ऑर्गेनिजम्स बने ना। अर्थ जब ठंडी होनी शुरू हुई तब क्या है, लाइफ आई, द लाइफ स्टार्टेड जनरेटिंग, एंड दिस वाज नथिंग बट डीएनए। दिस डीएनए इज नथिंग बट योर मन। मन की बात करते हैं, मन किसी ने देखा थोड़ी ना, बोलूंगी कहाँ है, उंगलियों में है मन, आप दिखाओगे नहीं, ये तो राइट हैंड की मिडिल फिंगर में है मन, काट कर देखते हैं अंदर कैसा है मन, दिखेगा नहीं। हेड में है नहीं, चेस्ट में है नहीं, कहीं पर भी तो नहीं दिखेगा। दिस इज नथिंग बट योर डीएनए। So this is the next element which originated the DNA. This is 8 man. And after generation of this man DNA जब आ गया, the organism generated and उसमें आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ। तब the concept of आत्मा came and the organisms started developing and multiplying and evolving. So this evolution is still continued. Okay. So all these elements are metaphysical. मेटाफिजिकल का मतलब है जिसे आप अपने सेंसेस से नहीं महसूस कर सकते, उसे फील कर सकते हो उसे। फाइन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। तो 10 एलिमेंट्स याद हुए हैं सबको? 10 एलिमेंट्स कौन कौन से? आकाश सबसे पहले क्या था? कुछ नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तब वहां पर तम था। तम के बाद वहां पर आकाश। यस, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, जल, पृथ्वी, एंड देन पृथ्वी जब हो गई तब काल, दिशा, मन और आत्मा। सो दिस इज द सीक्वेंस विद विच यू शुड रिमेंबर। ऐसा नहीं है किसी को भी कुछ भी नंबर दे देंगे, देयर इज साइंस बिहाइंड इट, इट्स अ साइंस। याद कैसे करेंगे? याद करने का भी तरीका है। 10 उंगलियां ले लीजिए, दोनों अंगूठों पर साइड कर दीजिए, ये तो वैसे भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो दोनों अंगूठे को अलग कर दीजिए, 4-4 उंगली बची। सबसे छोटी 2 उंगलियां कौन सी है? आई रिक्वेस्ट अ फ्यू ऑफ यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ। Yes, thank you so much. So, place which are the smallest fingers? Smallest one, both small finger, right? So the energy will always start from the smallest to the bigger one, sequentially, one after the other. So place both small fingers together. Correct? अब ये तो 2 छोटी हो गई, 1 2 हो गया। कौन किस पर जाएगा उसको बाद में समझेंगे। 2 छोटी उंगली है, 1 and 2। इसके बाद इससे बड़ी कौन सी दिख रही है? खुद ही सोचो, कौन सी दिख रही है? रिंग फिंगर दिख रही है। इससे बड़ी दिख रही है ये बोथ इंडेक्स फिंगर, ठीक है। If you see all the 4 fingers, after small finger you have the index finger. Okay, so 1 2 then 3 4, correct? याद रहेगा 1 2 3 4, fine. Now which one is the next one? Ring finger. So 5 6 and 2 left are लास्ट के, वैसे भी उसमें आ जाएंगे और ऐसे भी देखें तो सबसे बड़ी उंगलियां यही है, तो ये क्या हो गया? 7 8 हो गया ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एक 0 होगा एक 9 होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, और ये आप कितने भी सेमेस्टर में चले जाइए, ये हमेशा आपको आयुर्वेद में हेल्प करेगा। 0 1 4 5 8, दिस इज वन सीक्वेंस विच यू शुड रिमेम्बर, बाय हार्ट कर लीजिए। 0 1 4 5 8, दिस सीक्वेंस has all the elements with subtle energy, ठीक है। ये yin energies हैं in comparison to 2 3 6 7 9 which is yang energy. Just a minute. याद क्या रखेंगे?
01458, बस इस नंबर को याद रखें। देखिए अब तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है। मोबाइल नंबर में भी याद रखिए 5 नंबर हैं, बस ये 5 डिजिट है, 01458। नंबर याद, फोन नंबर याद रहे चाहे नहीं रहे, ये रोज सुबह शाम दोहराइए, 01458। ठीक है, एंड दिस इज गिन, ऐसे याद। दूसरा नंबर क्या है, 23679, 2 नंबर याद रख सकते हैं ना। ये क्या है, यांग, क्योंकि 1 के कंपैरिजन में 2 क्या है, ज्यादा एक्टिव है, तो 2 इज यांग। फाइन। इसी तरीके से जितनी भी एनर्जीज है ना, ये सारी यांग एनर्जीज है, दीज आर मोर एक्टिव एनर्जीज। फाइन। सो 01458 को कहां रखा गया है, यिन हैंड में, दैट इज योर राइट हैंड। 23679 क्या है, यांग है, यांग हैंड में रखा गया, यानी लेफ्ट हैंड में। हो गया ना डिवीजन, 01458 23679। अब इसमें देख लीजिए, 0 कहां जाएगा, 0 तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, 9 भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। 1458, 4 एनर्जीज बच गई। सबसे छोटी से शुरू करिए, 1, फिर 4, फिर 5, फिर 8, हो गया। इसमें क्या होगा, 2 3 6 7, हो गई ना 10 एनर्जीज। बस ऐसे ही याद रखना है, 10 एलिमेंट्स और उनकी प्लेसमेंट ऑन द फिंगर। आई डोंट थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल इजी है, बहुत 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 इजी है, याद रखना। और ट्रीटमेंट भी उतना ही इजी है। नो मैम मीन्स व्हाट, नो मैम इट इज नॉट इजी, या नो मैम इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। ठीक है, सो हमने क्या देखा, पहले 10 एलिमेंट्स देखे, 10 एलिमेंट्स का सीक्वेंस याद हो गया होगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ को याद कर लीजिए, कैसे कुछ नहीं से कुछ बना होगा, तो अपने आप ही याद आ जाएंगे 10 एलिमेंट्स के नाम सीक्वेंस में। फिर हमने देखा इन 10 एलिमेंट्स को 10 उंगलियों पर प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ ब्रह्मांड को जानना नहीं है, हमारा फोकस क्या है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, ट्रीटमेंट तो शरीर पर ही करेंगे। शरीर पर कहाँ करेंगे, जो 10 जैसा दिखता हो। 10 क्या है, 10 उंगलियां, तो 10 उंगली, 10 एलिमेंट्स को हमने 10 उंगलियों पर प्लॉट कर लिया, ताकि हम ट्रीटमेंट में यूज कर सकें। तो व्हेन वी टॉक अबाउट 10 फिंगर्स, तो 10 फिंगर्स पर 10 एलिमेंट को डालना है। 0 और 9 वैसे भी बड़े दिख रहे हैं, आगे और पीछे वाले, है ना, बुक का कवर है और एक बुक का नीचे का कवर है, फ्रंट एंड बैक कवर। तो 0 9 तो वैसे ही अलग हो गए। बीच के पेजेस हैं, कितने हैं, 8 पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हमें उंगलियों पर डालना है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, 1458 कहाँ जाएगा, वो राइट हैंड में जाएगा, ये राइट हैंड में जाएगा। 2367 कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड में जाएगा, बस। ठीक है ना, फिर हमने ये भी देख लिया, ये क्या है 1 2, ये क्या है 3 4, ये क्या है 5 6, और ये क्या है 7 8, उसी से उससे भी आपको याद हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, करेक्ट, 0 एंड 9, ये हो गए 10 एलिमेंट हो गए। अब 10 एलिमेंट में मैम 10 एलिमेंट तो याद हो जाते हैं, बट उनके ऑर्गन्स याद नहीं होते, सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी कंफ्यूज होने का नहीं है। 1 नंबर से शुरू करिए, 0 और 9 को एक बार साइड कर दीजिए, 1 नंबर से शुरू करिए। 1 नंबर को कैसे याद रखेंगे, 1 क्या है, 1 इज योर आकाश। आकाश के 2 ऑर्गन्स हैं। देखिए ऐसे याद करिए, कौन से एलिमेंट में उसकी खासियत है, कौन से ऑर्गन में उसकी खासियत, विच ऑर्गन हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आकाश की क्वालिटी बॉडी में आपको क्या लगता है, कौन से 2 ऑर्गन्स में मिलेगी, 2 ऑर्गन्स जिसमें बहुत आकाश है, कौन से 2 ऑर्गन है, बिगेस्ट इन द सेंस इट हैज अ लॉट ऑफ कवरिंग, one is your lung and second one is large intestine। लार्ज का तो मतलब ही पता है, लार्ज है इसलिए आकाश में आ गया। और लंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एल्वियोली हैं। ये तो पढ़ा था ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है या पढ़ेंगे, तो आप देखोगे लंग्स किससे मिलके बना है, बहुत सारे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह एल्वियोली है इसके अंदर में, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। अगर सारे लंग्स को जोड़ दें तो बहुत बड़ी चद्दर बन जाएगी। ठीक है, so lung or large intestine both has a lot of space, both has a lot of covering in it, and that is why one has lung and large intestine are included under one। Number 2, 2 में क्या है,
टू में दो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? टू क्या है? वायु, वायु है ना, आकाश के बाद क्या है? वायु, विंड। विंड की क्वालिटी या वायु की क्वालिटी आपके बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं जो वायु की तरह दिखते हैं? हार्ट, ये तो क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हार्ट बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली वर्किंग, मूव कर रहा है ना, पंप कर रहा है कंटिन्यूसली, इट हैज अ लॉट ऑफ विंड। और हार्ट का ऑलवेज पार्टनर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज बिना स्मॉल इंटेस्टाइन के हार्ट काम ही नहीं कर सकता। जैसे हस्बैंड और वाइफ है ना, एक दूसरे के झगड़ेंगे भी एक दूसरे से, और उसके बिना किसी के बिना नहीं चलती है ना, वैसे ही हार्ट का पेयर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन उसको खाना ना दे हार्ट को, तो हार्ट के पास ब्लड कहाँ से आएगा? तो दोनों एक दूसरे के पेयर हैं, तो हार्ट विल गो विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों विंड में आते हैं, वायु में। विंड मत बोलिए, इसे वायु ही बोलिए, क्योंकि जब भी विंड बोलेंगे ना तो फिर आपको ये वाला विंड याद आ जाएगा, 5 एलिमेंट्स पर। सो यू हैव वायु and two organs of vayu are heart and small intestine. Third is your agni. अग्नि की दो ऑर्गन्स कौन कौन से? कौन सा ऑर्गन ऐसा है शरीर में जो अग्नि जैसा है, फायर की तरह? फायर नहीं बोलूंगी, अग्नि की तरह, गर्म है। अग्नि किसमें? लिवर में। ये तो क्लियर दिख रहा है, जिसका क्लियर दिख रहा है कम से कम उसको याद रखिए, पैर अपने आप याद आ जाएगा। जब भी बात करेंगे ना लिवर का, तो लिवर के संग उसका बच्चा गॉल ब्लैडर संग संग में आ जाएगा, ठीक है। तो लिवर जो है एक्चुअल में इतना गर्म ऑर्गन है कि इफ देयर इज एनी सर्जरी ऑफ लिवर, लिवर की सर्जरी करके गूगल करिएगा, जब लिवर की सर्जरी होती है तो एक वाटर का पाइप अलग से उस पर दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो हीट है वो शांत होती रहे। सो मच ऑफ केमिकल्स इन लिवर दैट इट इज कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री। शरीर का केमिकल का फैक्ट्री, और जहां पर भी केमिकल्स होंगे आपको क्या लगता है, वो ठंडे होंगे या गर्म होंगे? केमिकल्स की बात करते ही क्या दिमाग में आता है? गर्मी, है ना। So it is related to your Agni, and Agni will come with your liver, will come with its friend, कौन है? गॉलब्लैडर, क्योंकि जो बाइल बनेगा वो कहाँ जाके इकट्ठा होगा? गॉलब्लैडर में ही तो इकट्ठा होगा, तो उसका सेकंड ऑर्गन है गॉलब्लैडर। फोर्थ वन इज, ये इजी है, योर 4 नंबर क्या है? जल है। जल के दो ऑर्गन कौन से होंगे? जल के वही दो ऑर्गन होंगे जो आपके चाइनीज में। कौन से हैं जल के ऑर्गन? वाटर एलिमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? के दो ऑर्गन है, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसे ये सबसे सबको सबको बड़ा मजा आता है वाटर से रिलेटेड, क्यों? क्योंकि इट इज सेम चाइनीज में भी आयुर्वेद में भी, है ना। सो जल से सीधा संबंध किसका? किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर से। फिफ्थ इज योर पृथ्वी। पृथ्वी का संबंध किससे? ये भी सेम है। पृथ्वी का संबंध आप चाइनीज में देखते हो तो भी उसमें स्टमक एंड स्प्लीन है। नाउ कम्स कुछ गोंडोगोल। गोंडोगोल क्या है? ऑल द मेटाफिजिकल एलिमेंट्स। कैसे याद रखें ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों को, कि कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ है, क्योंकि जब हम फिजिकल की बात करते हैं उसके तो फिजिकल ऑर्गन्स हैं, जब मेटाफिजिकल की बात करते हैं, मेटाफिजिकल का ट्रीटमेंट करना है, यानी काल का, दिशा का, मन का, कहाँ करें? काल का समय, काल का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? शरीर में कोई काल जैसा दिख ही नहीं रहा, शरीर में दिशा कहाँ देखें, शरीर में हम मन कहाँ देखें? सो 6, 7 और 8 को याद रखना बड़ा इजी। कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखने का एक तरीका है। कैसे तरीका है? कीप योर फिंगर्स लाइक दिस, ठीक है, ऐसे सामने की तरफ, ऐसे याद रखेंगे। सो इफ आई ड्रॉ माई फिंगर्स लाइक दिस, this is your 6 number finger, okay? And this is your 7 number finger, and this is your middle finger 8, ठीक है।
दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड, यही है ना। 6 7 ये दो हो गई, और यहाँ पर या 6 7 और यहाँ पर है आपकी 8 नंबर फिंगर यानी मिडिल फिंगर। अब इसके ऑर्गन्स को कैसे देखेंगे? देखिए ऑर्गन्स को देखना बड़ा इजी है। ये क्या है? सबसे पहले यहाँ से सबसे नीचे क्या है? स्पाइन है। स्पाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट जो यहाँ पर मेटाफिजिकल में है वो कौन सा है? नंबर विच इज दैट नंबर? फर्स्ट मेटाफिजिकल एलिमेंट नंबर 6। तो 6 पर क्या आएगा? स्पाइन। इसमें भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। स्पाइन से ऊपर क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट अबव स्पाइन? जस्ट अबव स्पाइन। स्पाइन के ऊपर का भाग कौन सा है? मेड्यूला। वेरी गुड, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला। सो 6 में नीचे स्पाइन, ऊपर क्या आ जाएगा? मेड्यूला। 6 के बाद हम कहा जाएंगे? 7 पर जाएंगे। मेड्यूला से ऊपर क्या है? ये कौन सा हिस्सा है? दिस इज पॉन्स। तो 7 में यहाँ क्या आएगा? पॉन्स, ठीक है। पॉन्स के ऊपर क्या है? पॉन्स से ठीक ऊपर क्या है? आफ्टर क्रॉसिंग cerebellum it is going to midbrain. Okay, so after pons we'll have cerebellum. Fine. After cerebellum, where will you move to? The next would be your midbrain. This is midbrain. Midbrain, ये क्या है? आपका cerebellum. So यहाँ पर आ जाएगा midbrain. And after midbrain, you have the frontal part, which is your cerebrum. And cerebrum के अंदर, cerebrum हमारा सबसे developed part है, which is differentiating us from any other living organism. हमें जानवर से मनुष्य कौन बनाता है? हमारा cerebellum, cerebrum, ठीक है। और cerebrum के अंदर जो मशीनरी है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो मनुष्य को मनुष्यता देते हैं। लिम्बिक सिस्टम इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 9 ऑर्गन्स। 9 ऑर्गन जो एक सम काम करते हैं, उन 9 ऑर्गन को बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। और ये कौन सा सिस्टम है? हमारे ब्रेन के अंदर जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम है ना, ठीक उसी तरीके से ब्रेन के अंदर एक सिस्टम काम करता है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। सो वी हैव लिम्बिक सिस्टम इन दी, पहले वाला जो माला है ना, ये सबसे सामने वाला, इसके अंदर है हमारा लिम्बिक सिस्टम। सो यू हैव लिम्बिक सिस्टम हियर। सो यहां पर आ जाएगा आपका लिम्बिक सिस्टम। याद हो गए सारे ऑर्गन? 0 और 9 तो हेड ऑफ फैमिली है, उनके पास कुछ ना कुछ हेड ऑफ फैमिली वाले ही ऑर्गन्स होंगे। जैसे 0 के पास है आपका रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी, एंड आपका 9 पर है आपके न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन। न्यूक्लियस मीन सबसे अंदर का हिस्सा जो, ठीक है। आई होप ये सबको याद रहा होगा। अगर नहीं याद रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी ड्रॉ किया ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और इसे याद रखिएगा। कभी भी अगर लगे कि ब्रेन के पार्ट्स प्लॉटिंग याद नहीं आ रही है, चार्ट में क्या दिया हुआ है उसके संग आपको बार बार खोलकर देखना पड़ता है, तो ऑलवेज रिमेंबर द सीक्वेंस इन विच द ऑर्गन्स आर प्लॉटेड ऑन द नर्वस सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम द
स्पाइन टू मेड्यूला टू पॉन्स टू सेरिबेलम, सेरिबेलम के बाद can't see the drawn pic. Fine. So I hope ये सबको समझ में आया होगा और सबको याद रहेगा कि what are 5 elements and what are 10 elements. 5 elements की जब बात करेंगे तो 5 energies को याद रखना है, 5 energies, उनके दो दो organ और उनके कलर, बस इतना ही याद रखना है, अभी इतना ही याद रखिए. With time you will learn everything. सब चीजें याद हो जाएंगी. एक दिन में कोई रेसिपी आपको याद नहीं हुई होगी. जो किचन में भी बनाते हैं वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाते हैं, है ना. तो ठीक उसी तरीके से बस 2-4 चीजें याद रखनी है. क्या याद रखना है? 5 एलिमेंट में याद रखना है. 5 एलिमेंट, उनकी 6 एनर्जी, उनके दो दो ऑर्गन और उनका कलर. अगर इतना आपको याद है तो आपको ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाएगा. और 10 एलिमेंट्स की जब बात करेंगे तो 10 एलिमेंट्स में आपको याद रखना है 10 एलिमेंट्स का सीक्वेंस क्या है, उनकी फिंगर्स कौन कौन सी है और उस पर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. इसमें देखिए और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें. आपने देखा होगा ना वो 10 एलिमेंट वाला चार्ट जिसमें आपने कलर भी देखा होगा, उसमें सेंस ऑर्गन्स, एक्शन ऑर्गन्स, उसमें होल्स देखे होंगे, ये सब भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखे होंगे, ये सब है. बट बेसिक चीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए, उसके लिए आपको किताब नहीं खोलनी पड़नी चाहिए. फाइन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.